Good evening, everyone. When we face a lot of hardships, when we face a lot of ups and downs, do we give up or do we give a tough fight? I think we all should give a tough fight and win over the difficult situations. Life is all about challenging the situation you are in and emerging victorious. My dear friends, we'd love to connect with you every single day. And when we find several guests who share their time with us, when guests are ready to share their time with us, we are really happy to have them share their time with us and we take the journey forward. Today, we are really happy to connect with one important person. She is connected with literature. She is really into that zone right from her childhood. We'll get to know more about her journey. We have a guest today who's going to connect with us all the way from Jharkhand, Ranchi. She is none other than Sampada Thakur. She's joining us all the way from Ranchi. We'll get to know more about it on this journey as to who she is, what is her call in life, and why has she entered into the field of literature. So we'll get to know more about her life today as to who she is, what she does, and what she has to share with all of us. As far as we know, she's a wonderful writer. She's been getting a lot of awards and rewards across different platforms, and she's here with us to share her life journey and to inspire us with her writings. We'll get to know more about her lifestyle. She is none other than Sampada Thakur, joining us all the way from Jharkhand, Ranchi. Hello, ma'am, and welcome to the session. Thank you so much for being a part of our journey. नमस्कार, मैं संपदा ठाकुर। आप सभी को बहुत बहुत आभार और क्रिस्टीना जी आपको भी मुझे इस इंटरव्यू में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, वही काफी है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा हम करना है। थैंक यू सो मच संपदा मैम। मैं आगे जाके आपका प्रोफाइल पढ़ूंगी और शेयर करूंगी सबके साथ और हम स्टार्ट करेंगे। जी Thank you so much. So dear friends, here's a wonderful person. We have Sampada Thakur with us. She's going to share her journey with us. But before the session, I do share the profiles of all our celebrity guests. And today it is the time to share the profile of Sampada ma'am. We'll get to know more about her as to who she is and what she does. As I earlier mentioned, she's connected with literature. And she is basically from Mungur, Bihar. But presently she's staying in Jharkhand, Ranchi. And she has completed her MA in political science. She's very passionate about literature. Right from her early childhood, she has been enjoying writing. So whenever she begins to write or put her thoughts on paper, that's when she feels extra happy. So this is how she's been doing her work till date. She's been contributing a lot to the field of literature. To put it right, she has contributed to several anthologies, including Revisiting Munshi Ji, Shrishti Tarang, कुसूर किसका, जीने का जिद, and Rudrapriya, Sarvashreshta Rachnaye. She's also worked on Mrityunjay, and many of her writings have been published in various newspapers. Example, Naya India, Red Handed, The Gram Today, if I'm not mistaken, Indore Samachar, Amrit Rajasthan, Amar Ujala, Jhanjat Times, Ranchi Express, and many more. She has received several certificates and certifications for the work that she's done till date. Let's just find out as to what it is. She's received an award from let me put it right, the Brahman Yoda Foundation, the Brahman Yoda Foundation Award, Navjeevan Jagaran Samati Award, Mahila Shakti Samman Patra. She has got that as well. The Women Empowerment Award and Shreshth Rachnakar Samman Outstanding Writer Award, Kavya Ratna Samman Award, Kavya Shiromani Samman Award, Corona Warrior Award, Punit Anupam Sahitya Samman Award, that is the Exceptional Literary Award. If I mispronounced anything, kindly forgive me. And also, she says, this is very close to her heart, the National Pride Award. It holds a very significant place in her life. Winning awards is not a great thing, but contributing to the field of literature is the mark that she would love to leave behind as a legacy for all of us. We'll get to know more about her journey on the International Fab Talks. Join us, friends, to have a wonderful time with our celebrity and guest. She is none other than Sampada Thakur. Sampada ji, आपका प्रोफाइल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आप इतना सब कुछ लिख चुके हैं, इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको, बढ़िया है और हैट्स ऑफ टू यू. ऐसे ही आप करना है, आगे जाकर और भी काम ऐसे ही करना है. तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे. मैंने अपने तरफ से थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया है. खुद के बारे में संपदा जी क्या कहना चाहेंगे आज हमारे मंच पर. अब मैं मेरे बारे में क्या बताऊं.
ये तो मैं मेरे बारे में अगर कुछ बोलूँ तो ये हो जाएगा, एक कहावत सुनी है आपने, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। तो मेरा नाम संपदा, यही मेरी ख़ासियत है और यही मेरी परिभाषा है और अपने बारे में किसी औरों के मुँह से सुनना, दूसरों के मुँह से सुनना, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपने बारे में अगर पूछा जाए, तो फिर भी एक फ़ॉर्मेलिटी कहिए, तो मैं एक जुनूनी लड़की हूँ। मैं जो चाहती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उसे किसी हद तक पूरा करने की और लोग मुझे मेरे व्यवहार से जानें। मैं ये कोशिश करती हूँ कि किसी से भी घुलना, किसी से भी मिलना और मैं जब मिलूँ किसी से, तो लोग मुझे याद रखें। ये हमारी कोशिश है और ये मेरी पहचान है कि मैं किसी से भी मिलती हूँ, तो उससे घुल के मिलती हूँ। बढ़िया है मैम, बहुत अच्छा। दैट्स रियली नाइस। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को वर्णन किया है। दैट्स रियली गुड, ग्रेट। तो दूसरों के जबान से आपका प्रशंसा होना वो अच्छा लगता है। खुद में आप खुद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना पाए चाह रहे हैं आप, यू नो, दैट्स व्हाट। तो बिल्कुल। that's really nice. She's very down to earth and polite. She doesn't want to praise herself, but of course there are several people who praise her for the good work she has done. बहुत सारे लोग आपका प्रशंसा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं आपके काम को लेके। हम ये पहले जानना चाहेंगे मैम, आपको ये आसक्ति बचपन से स्टार्ट हुआ, ये हमें मालूम है। तो कौन से क्लास में थी जब आपको लगा कि मुझे लिखना है, लिखने पर लिखने से मुझे मेरा पूरा मन की बात जो है मैं लिखूं और समाज में मैं शेयर करूं? तो कौन से क्लास में थे या क्या आपकी उम्र क्या थी तब? अब मैं मेरी उम्र क्या थी, मैं ये तो एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगी, बट मुझे लगता है कि मैं 4-5 क्लास से ही तो ऐसा लगता था कि नहीं मैं कुछ लिखूँ इस मुझे ना कुछ प्रेरित कर रहा है, ये एनवायरनमेंट मुझे प्रेरित कर रहा है, ये पहाड़, पौधे, झरना, ऐसा लगता था लोग कह रहा हो कि मुझे लिखो और मेरे बैग में ही होता था, मैं कहीं भी जाती थी, तो मेरे में एक बुराई कहिए या अच्छाई कह लीजिए, मेरे पास पेन और एक छोटी-सी डायरी, वो हमारे पास ही रहती और मैं जैसे कि 2 लाइन कुछ याद आया, तो 2 लाइन से मैं 8 लाइन बना लूँ। बट अगर वो 2 लाइन भी मिस कर गई, तो फिर मैं सोचती रह जाती थी, अभी मैंने क्या सोचा था? अभी मैंने क्या सोचा था? और इसके लिए मैं हमेशा उसको रखती थी साथ में और मुझे जहाँ मौका मिल जाए, तो मैं वहीं पे लिखती थी बैठ। तो लिखना मुझे बचपन से ये मेरा शौक। जी जी, दैट्स रियली नाइस। तो जैसे आप बड़े बन चुके, बड़े बड़े होते गए तो बड़े बन चुके, आप तब किस विषय पर लिखने लगे? छोटे हैं जब आप पेड़ पौधे को देखकर वो आपको आकर्षित कर रहे थे और आप जी, उनके बारे में लिखते थे। जैसे आप बिल्कुल। बड़े हो गए तो आप किन किन विषयों पर लिखने शुरू करें? देखिए, एक कवि जो होता है, एक रियल कवि का है क्या, वो हर विषयों पे सामयिक लिखना, हर विषय पे लिखना, विषय से अलग हट के लिखना, श्रृंगार पे लिखना, तो कवि को मतलब हर विधा में हर हर छंद और हर विषय पे लिखना होता है। ये नहीं कह सकते कि मैं इस विधा पे लिखती हूँ, मैं सिर्फ़ श्रृंगार रस की कवि हूँ। तो फिर श्रृंगार रस वाले को आप बताएँ कि स्वतंत्रता दिवस पे फिर उसे वो वहाँ पे श्रृंगार तो नहीं सुना सकता है। वहाँ पे तो उसे वीर रस, भक्ति रस ऐसी सुनानी पड़ती है। तो एक कवि हर छंद और हर रस में कहिए कवि के अंदर रस भरा हुआ रहता है। वो आपको तय करना है कि आपको कौन-सा रस लेना है और यस, आपको कौन-सा रस लेना है और मीठा, नमकीन, कड़वा कवि के अंदर सारे रस होते हैं। वो श्रोताओं पे निर्भर करता है कि उन्हें क्या चाहिए। समय पे निर्भर करता है कि समय की डिमांड क्या है। जी जी, समझ सकते हैं मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कब लिखते हैं? आप अभी तो एक माँ है, आप बच्चों को भी संभालना है, जी, जी। एक फैमिली बन चुका है आपका, तो थोड़ा जी, सा टाइम फैमिली को भी देना है, थोड़ा सा टाइम बिल्कुल, राइटिंग को भी बिल्कुल। देना है। तो आप बिल कैसे मैनेज कर पाते हैं ये दोनों? और अगर लिख रहे हैं भी, कब लिखते हैं आप? सुबह सुबह में या देर रात तक, या ऐसा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैनेज करना तो पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना होता है। तो हमारा क्या होता है कि जब सारे लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित कर देती हूँ,
फिर जो टाइम बचता है ना, वो मैं मेरे लेखनी को देती हूँ। वो मेरा खुद का टाइम होता है। और जैसे रात में बच्चे लोगों को खिला-पिला करके जब सब कोई सो गए, तो मैं 1-2 घंटा खुद के लिए भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो हमारा फ्री टाइम होता है, थोड़ा लिख और उसमें क्या होता है ना कि जैसे दिन भर मैंने कुछ सोचा या हमारे माइंड में कुछ आया, तो मैं उस समय बिल्कुल फ्री होकर के लिखती हूँ। ये हमारा टाइम होता है। जी जी जी। फिलहाल आप झारखंड में है ना मैम? जी। तो आप बिहार से यहाँ झारखंड को शिफ्ट हो चुके हैं? बिल्कुल। जी। आप झारखंड के बारे में कुछ हमें सुनाइए। झारखंड में क्या चीज अच्छी है, आपको क्या अच्छा लगता है झारखंड में? तो मैं झारखंड की, पहले तो मैं मुंगेर की हूँ। और अगर मुझे कोई पूछा जाए, कोई कहता है ना कि मैं बिहारी हूँ, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे प्राउड होता है बिहारी होने पे। बट अभी मैं यहाँ झारखंड शिफ्ट करी हूँ, तो मैं 4 पंक्तियों में आपको झारखंड के बारे में बताना चाहती हूँ। सुनिए। रहती यहाँ हर पल सबाब पर है प्रकृति, रहती यहाँ सबाब पे हर पल है प्रकृति, यहाँ न किसी के दिलों में द्वेष विकृति, यहाँ न किसी के दिलों में द्वेष विकृति, क्या क्या करूँ तारीफ इस शहर की संपदा, मनमोहती यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, मनमोहती यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, मनमोहती यहाँ की सभ्यता और संस्कृति। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहुत ये अच्छा। यस, ये मैंने आपको 4 अपनी अपने लैंग्वेज में, कवि की लैंग्वेज में मैंने आपको झारखंड की विशेषताएं बताई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा है मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लोग आपका काम प्रेस करते हैं और पसंद भी करते हैं। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं आज तक, तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपके काम को महत्व देते हैं और आपको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जब लोग मेरे काम की प्रशंसा करते हैं, मेरी कविताओं की तारीफ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ लिखती हूँ, जो कि दिल से लिखती हूँ और किसी के दिल तक पहुँचता है। क्योंकि तारीफ कभी भी दिल से निकलती है। और मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि लोग झूठी तारीफ तो नहीं करते हों, और 100 में 99% लोग तो झूठी तारीफ नहीं करते हों। क्योंकि अगर झूठी तारीफ करते हैं, तो वो आपको सिर्फ़ बहुत सुंदर, बहुत खूब में मिल जाएगा। और जो प्रशंसा करते हैं वो दिल खोल के करते हैं। आप हमारी कविताओं के नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं कुछ गलती हो, तो हमारे कवि लोग हमें बताते हैं, हमारे साथी रचनाकार बताते हैं। और जहाँ जो अच्छा होता है, तो वो अपनी पंक्तियों के ज़रिए उसमें तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भीड़ से अलग मैं भी कुछ हूँ, अच्छा लगता है सम्मान पा कर के। बिल्कुल। वाह, बहुत बहुत अच्छा, खूब आपने कहा। अंत में एक अच्छी सी पंक्ति आपने कहा, भीड़ में मैं भी कोई हूँ, मैं भी कुछ ऑफर कर यस, सकती हमारी हूँ। भी अलग एक पहचान है। जी, मेरी भी एक पहचान है, हम सभी का एक पहचान रहना है। तो आपको लिखने में आपका पहचान बना चुके हैं, वो बहुत अच्छी बात है मैम। अभी जब आप छोटे थे तो मम्मी और पापा आपके क्या आपको एनकरेज करते, आप लिखो बेटा, या नहीं तो कभी डांट मिलती है क्या, हमेशा लिखती रहती हो, अपने पास छोटी सी कॉपी और पेन रखते हो? कभी ऐसा आपको रोक टोक कुछ हुआ या आपको पूरा फ्रीडम दिया गया आप लिखने का? अरे नहीं, नहीं, फ्रीडम की क्या बात है। फ्रीडम तो था, पढ़ाई-लिखाई पे था। बट जहाँ मैं ये सब लिखती, पापा का डाँट पहले पड़ता, "अरे! ये क्या कर रही हो तुम? तुमको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये क्या लिखते रहती हो?" बट नहीं कहते हैं कि शराबी को शराब का लत, जुआरी को जुआ खेलने का लत। और मतलब किसी न किसी चीज़ को तो मुझे कविता लिखने का लत लगा था, मुझे इसी चीज़ की नशा थी। और इसके बिना दिन नहीं गुज़रता था, ऐसा लगता था आज मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए। जी जी जी, मैं तो ये समझ मेरा सकती हूँ। लत था कहिए। और मम्मी मम्मी तो फिर भी
मेरे को बहुत प्यार करती थी, थोड़ा पापा भी प्यार करते थे। लेकिन क्या है कि वो जब देख लेते थे, ओह! मैं फिर से डायरी पेन लेके बैठी हूँ, तो वो समझ जाते थे कि ये फिर कुछ ना कुछ कर रही होगी और उनको लगता था कि नहीं फिर इसमें दिमाग जाएगा, तो ये पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए नहीं कभी-कभी तो डाँट भी पड़ती थी, कभी-कभी देख के वो इग्नोर भी मारते थे। बट है क्या कि डाँट भी पड़ती थी कभी-कभी कि नहीं क्या कर रही हो? पढ़ाई पे कोशिश कर बिल जी, जी। अभी भारतीय जो भारत में या भारतीय नारी को लेंगे हम लोग, स्त्री, बहुत सारे भारतीय नारियों के पास अच्छा सा टैलेंट है, लेकिन वो आगे आके नहीं दिखा पा रहे। आपने हिम्मत जोड़कर आपने अपना टैलेंट ये यू हैव पुट इट टू लाइट, अपना टैलेंट को दिखा दिया दुनिया को कि भाई मैं लिख सकती हूँ और मैं उसको पेश भी कर सकती हूँ सभी के लिए, सभी के दिल तक मैं पहुंचा सकती हूँ मेरे थॉट, सोच और विचार। लेकिन थोड़े जो स्त्री लोग हैं वो अपना सोच विचार आगे आके नहीं प्रकट कर सकती, लेकिन उनमें टैलेंट है। तो ऐसी औरतों को आपसे किस तरह की मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाएंगे उनके लिए? ऐसी औरतों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोग आप देखते होंगे आए दिन डॉक्टर, इंजीनियर रेलवे में तो किसी भी पद पे लोग बन सकता है। बट ये जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारी जो आर्ट है, वो 100 में से 1 को ही आती है और जिन भी लेडीज़ में है, वो उनको दबाना नहीं चाहिए। उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आकर के बताना चाहिए कि ये हमारा टैलेंट आप लोग भी देखो। और अगर बाय चांस किसी को फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं, तो मैं उस फैमिली को भी ये भी कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ आजकल क्या नहीं कर सकती। आज आप देख लीजिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी रह चुकी। आज राष्ट्रपति भी महिलाएँ ही हैं। तो महिलाएँ हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं। कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएँ नहीं? तो सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को लड़कों से कम ना समझें। बल्कि आज तो लड़कों से कहीं अधिक में लड़कियाँ, तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये पिछड़ी मानसिकता कहलाती है। ठीक है? कि भाई लड़की हो, घर में तुम्हें चूल्हा-चौका करना है, तुम्हारा काम सिर्फ़ तुम्हारे पति आए तुमको खाना देना है, फिर बच्चों को देखना है। नहीं, ये नहीं। आजकल तो महिलाएँ बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही है, जिसको आप स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, कि बच्चों को खाना-पीना देने के साथ भी महिलाएँ आज वर्किंग वुमन कहलाती हैं, निकल जाती है घर से। तो सारी ये भी तो उनके अंदर का टैलेंट ही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिन औरत में जो भी टैलेंट है, वो आगे आए, आगे आकर के अपने टैलेंट को दिखाएँ, अपने टैलेंट को कभी दबा के ना रखें, क्योंकि वो खुद तो घुटेंगी ही, उनको कभी ना कभी ये अफ़सोस आएगा कि हमारे अंदर भी तो ये कला थी, हम दिखा नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। तो इसलिए वो फ्री स्वतंत्र है, हर चीज़ से स्वतंत्र है वो। आज के युग में आप बताएँ कि महिलाएँ क्या स्वतंत्र नहीं? बट है क्या कि उनके पेरेंट्स को चाहिए, किसी न किसी अगर दबाव में वो है, तो वो उस दबाव को पहले खत्म करे, अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझाए और आगे आए। बस यही कहना चाहें। यस डियर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो जो देखेंगे ये प्रोग्राम, ये भी उनके मन में ये सवाल आएगा, क्या मैं लिखने से, अगर एक इंसान लिख रहे हैं अपने सोच विचार या किसी विषय पर लिख रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी सी कमाई हो जाती है हमारे लिए, बस लिखते हैं बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, या साइड में कमाई भी हो जाती है? अगर ऐसा है तो अच्छा है, तो एक तरफ से अपना थॉट्स पूरा उसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से थोड़ा आमदनी भी हो जाती है, तो दोनों बैलेंस हो जाती है। तो क्या एक वेल लेखक या लेखिका या जो लिखते हैं उनको थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है या नहीं? देखिए, मैं लेखिका को ये बेनिफिट होती है ये नहीं कहूँ, क्योंकि मैं भी एक लेखिका हूँ और बेनिफिट की जब बात जहाँ तक किया जाए, तो लिखने में बेनिफिट उनको है जो उस लेवल तक पहुँच चुके, ठीक है? और ऐसे नॉर्मल लिखने वालों को कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, एक बेनिफिट है कि लोग आपको जान रहे हैं, आप में जो टैलेंट है, वो आपका निखर रहा है। हो सकता है कभी ना कभी बेनिफिट जी मैम, जी मैम, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।
अभी हम ये पूछना चाहेंगे आगे जाके और क्या क्या लिखना चाहेंगे। ऑलरेडी इतने सब कुछ लिख चुके हैं हम, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी आगे आपके बकेट लिस्ट में क्या क्या है, किन किन विषयों पर आप लिखना चाह रहे हैं अभी? देखिए, वो तो सामयिक है, मैंने कही कि समय की डिमांड। और रही बात क्या कि एक कभी कभी भी सब कुछ नहीं लिख सकते, वो उनके अंतर्मन से जो निकलता है वो वही लिखता है। और भविष्य में अगर मुझे कुछ लिखने की बात आई, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के उत्थान के बारे में, ठीक है? जो महिलाएं आज भी पिछड़ी सोच के कारण अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रही है, जो महिलाएं पिछड़ी सोच के कारण आगे नहीं आ पा रही हैं, तो मैं पहले ऐसी मानसिकता को खत्म करने पर कुछ लिखूं, जिससे कि पढ़ के लोगों में मानसिकता जागरूक हो और लड़कियों को कम ना समझे, महिलाओं को घर का साजो श्रृंगार का सामान ना समझे। मैं उस पे लिखना चाहूँ। जी, बहुत बहुत खूब। अभी हम ये जानना चाहेंगे, आपकी सहेलियां जो थे स्कूल में या कॉलेज में, क्या जब आप लिखते थे तो थोड़ा सा जलन होता था उनको, क्या इसको लिखने का जो टेक्निक है उसको आता है, हमको नहीं आता? या जब आप लिखते हैं आपका प्रशंसा करते हैं या आपका निंदा करते हैं कभी कभी? क्योंकि सहेलियां बहुत, थोड़े लोग बहुत अच्छे रहते हैं, थोड़े लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं। तो आपकी जिंदगी में सहेलियां या दोस्ती क्या मायने रखता है? मेरे ज़िंदगी में दोस्ती बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि आप जो बात किसी से नहीं कह सकते, दोस्त से खुल के कर सकते। पर रही बात जहाँ तक जलन की, तो कुछ ना कुछ देखने को मिलता था। और अरे यार! क्या बात है, किस पे लिख रही हो, क्या लिख रही हो, नहीं लिख रही हो। तो ये तो मानसिकता शुरू से चली आ रही है, और मेरे को लगता है कि चूँकि दोस्त हैं, तो फॉर फ्यूचर तक चलती ही रहेंगी। और कहिए आदिकाल से चला आ रहा है और आदिकाल तक चलता रहेगा, वाली बात हो गई है। तो निश्चित है वो, कहते हैं ना कि दोस्त अगर फेल होता है ना, तो तकलीफ होती है तो सबसे पहले दोस्त को। और अगर दोस्त पास कर जाए, वो भी दोस्त से अच्छे नंबर से, तो सबसे ज़्यादा जलन और तकलीफ अगर किसी को होती है, तो वो भी दोस्त को ही होती है। तो वही वाली बात हो गई थी। हाँ। जी संपदा मैम, समझ सकते हैं आप जो शेयर किया है अभी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे, अभी आप समाज में जब आप देखते हैं इतना सारा अत्याचार आज तक होती है, भारत आजाद हो चुका है लेकिन अत्याचार अभी तक चल रही है। कहीं ना कहीं एक स्त्री का बलात्कार होता है या उसका हत्या हो जाती है, या शादी के बाद में उसको प्रेशर डालते हैं कि आप दहेज लेके आइए, बहुत सारे। तो हम ये पूछना चाहेंगे, आपको गुस्सा आता होगा ये सभी देखकर? मुझे तो आती है, सभी लोगों को भी आता होगा अगर अत्याचार कहीं हो रही है। तो आपको जब ये गुस्सा आ जाती है अंदर, ये सब समाज में देखने के बाद में, क्या वो पूरा गुस्सा आप लिखने में आप वो सब लिख कर आप पेश करते हैं? आपका गुस्सा आप निकाल के यू पुट इट ऑन पेपर एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब समाज पे कहीं कोई अत्याचार होता है, तो वो भी तो महिलाएँ हैं। और वहाँ पे मैं खुद को भी रखती हूँ कभी-कभी, कि मैं भी एक महिला हूँ, और वो अत्याचार जो होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुषों पुरुषों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दहेज के लालच में किसी को जला दिया जाए। अरे कोई अगर दहेज नहीं दे पाए, तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो भी तो समझो। उसके माँ-बाप ने उसे पाल-पोस करके बड़ा करके तुम्हारे हवाले कर दी। एक बेटी जो होती है, वो अपने पिता के जिगर का टुकड़ा होती है। जितना लगाव एक पिता को अपनी बेटी से होता है, बेटे से हमको लगता है कि नहीं होता। क्योंकि बाप के लिए बेटी बहुत मैटर है। और अगर अपने जिगर के टुकड़े को किसी को दे रही है, तो दहेज के लालच में आकर के, या दहेज अगर मिल भी गया हो, तो भी तुम अपने बाप के घर से ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रेम और विश्वास, इसमें लोग आजकल इसको व्यापार बना लिए। क्या है ना कि प्रेम आजकल, आपने अभी तो फिलहाल बंगाल वाला केस तो आपको कांड उसका पता ही हो। आप बताएं कि भरोसा इंसान किस पे करे? तो यहाँ कोई भरोसे के काबिल नहीं रहा। और आजकल प्रेम जैसे कि एक व्यापार है,
इससे जैसे विश्वास उठता जा रहा हो। और दूसरी बात क्या है कि आजकल कोई कृष्ण नहीं आता यहाँ, द्रौपदी के चीरहरण के लिए अब कोई कृष्ण बचाने नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि महिलाएं को खुद जागृत होना पड़े इसके लिए, और खुद की रक्षा स्वयं करनी पड़े, है। क्योंकि विश्वास तो जिस पे करते हैं पता चलता है कि जिस जो रक्षक है मेरा वही लास्ट में भक्षक निकल जाता है। तो अब यहाँ कोई रक्षक नहीं है स्वयं के अलावा। तो मैं आपको 4 लाइनों में बताती हूँ कि मैंने महिलाओं पे लिखी थी। जी मैम। कोई न भरोसे के काबिल अब खुद की रक्षा स्वयं करो। कोई न भरोसे के काबिल अब खुद की रक्षा स्वयं करो। होगा बदलना नारी तुमको फिर चंडी का रूप धरो। होगा बदलना नारी तुमको फिर चंडी का रूप धरो। सब अपनी रोटी सेक रहे सारा सिस्टम ही बिकाऊ है। सब अपनी रोटी सेक रहे सारा सिस्टम ही बिकाऊ है। गिद्ध भेड़ियों पर बन काली तुम प्रहार प्रचंड करो। गिद्ध भेड़ियों पर बन काली तुम प्रहार प्रचंड करो। होगा बदलना नारी तुमको खुद की रक्षा स्वयं करो। खुद की रक्षा स्वयं करो। तो ये मैंने नारी के लिए लिखी, ये सिचुएशन को देखते हुए। बहुत बहुत वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। जब आप पढ़ रहे धन्यवाद। थे ना, जब आप शेयर कर रहे थे, तो एक अच्छा सा ऐसा स्ट्रांग फील हो रहा था हमें। वेरी वेरी नाइस। खुद का रक्षा करना सीखना है हम सभी को। जी, हिम्मत से रहना है, सभी जुड़ मिलकर रहना है, एक दूसरों का मदद करना है। अगर कोई साथ ना बिल्कुल, दे, खुद लड़े और खुद आगे जाए। खुद लड़ी। That's बिल्कुल। really और nice। अपने हक के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं। जी, बढ़िया है। मैम, अभी हम ये जानना चाहेंगे, स्त्री और पुरुष जब लिखते हैं तो इन लिटरेचर जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं और मेल मेंबर्स भी लिखते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा उनकी सोच विचार कुछ अलग रहता, स्त्रियों का अलग रहता। तो कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं ऐसा, जब आप कुछ शेयर करते हैं या ऑपोजिट जेंडर कुछ शेयर कर रहे हैं, तो कभी ऐसा टकरार कभी हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह के टकरार हुए? जो आपने लिखा गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, आप समाज के खिलाफ लिख रहे हो, हमें पसंद नहीं आया है, ऐसा कुछ अभी आपने फेस किया है ऐसा कुछ मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप कुछ सच लिख जाते हैं, तो कुछ लोगों को लग जाता है। जब आप कुछ भी थोड़ा सच लिख जाते हो या फिर कुछ पुरुषों के प्रति कुछ लिख जाते हैं, तो उनको थोड़ा-सा तो लगता है। और बाकी तो उतना ज़्यादा नहीं है, हमारा तकरार कभी लेखनी को लेकर के नहीं हुआ। क्योंकि मैं स्वतंत्र ख़्यालों की हूँ, मैं जो भी लिखती हूँ, जो भी करती हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि किस टाइप की है। और मतलब मैं दिल में कुछ नहीं रखती। जो होता है वो मेरी जुबान पे होता है, जो होता है वो मेरा लिखा हुआ होता है। और आज़ाद ख़यालों की मैं बचपन से अ, बस मैं अपने बारे में कभी-कभी लिखती भी हूँ, मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। जी जी, जरूर। आज़ाद ख़यालों की हूँ मैं, जी हुज़ूरी किसी की नहीं करती। आज़ाद ख़यालों की हूँ मैं, जी हुज़ूरी किसी की नहीं करती। झूठ की चाशनी में लिपटी बातों पे सहमति नहीं भरती। अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, हर पल जीती हूँ मस्ती में। अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, हर पल जीती मस्ती में। अपने जीवन को सदा ही मैं अपने शर्त पे हूँ जीती। अपने जीवन को ही सदा मैं अपने शर्तों पर हूँ जीती। तो मैं अपने शर्तों पे जीती हूँ अपनी लाइफ। और मैं
उतना ध्यान नहीं देती कि कौन मेरे बारे में क्या बोला, नहीं बोला। तो बस इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेती, बस। जी, 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 बढ़िया है, बहुत-बहुत अच्छा है, बहुत खूब आपने लिखा है, दैट्स रियली वेरी नाइस। ये मैंने कहीं सुना है हमारे मंच पर एक गेस्ट ने शेयर किया था, भारत का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो ये लोग क्या कहेंगे इसके बारे में हम सोच-सोच कर हम अ, डर जाते हैं कुछ काम करने के लिए। तो वो जी, जी, जो जी। गेस्ट थे बहुत अच्छे डॉक्टर राजेश थे वो जो शेयर किया था। तो भारत का अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो अच्छा राइमिंग वर्ड्स लाके उन्हों शेयर बिल्कुल, कर बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम किसी से नहीं डरना, सही काम कर रहे तो हम लोग आगे जाना है, किसी से बिल्कुल। नहीं डरना है, निडर होके अपना काम करना है। हुँ, हाँ, अभी हम ये बड़ी बात पूछना है आपसे, ये धन के बारे में या सेविंग्स के बारे में। एक महिला या एक पुरुष, एक इंसान के हुँ, लिए थोड़ा-सा कमाई हो जाता है, जो भी हाथ में आ जाता है, उसमें से थोड़ा बचा के रखना है, सेविंग्स जुट हुँ। जुट कर रखना है, टू पुट इट राइट, सेव द मनी। तो अक्सर देखा गया ज़्यादा लोग सेविंग्स नहीं करते, पूरा खर्च कर देते बच्चों पर या परिवार पर या जो पूरा। अंत में जब उनके टाइम आ जाता है रिटायरमेंट के टाइम उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ खर्च हो गया। तो मुश्किल हो जाती है। तो हम अभी प्रश्न क्या है, ऐसा आप एक सुझाव दीजिए, थोड़ा-सा पैसे बचा के रखना है, क्योंकि आगे जाकर वही पैसे आपके काम आएँगे, पूरा पैसे नहीं खर्च करना है, कुछ ना कुछ बचा के रखने से हमारा भला होगा और हमारे परिवार का भी भला होगा। और बच्चों को भी ये बिल्कुल, बात सिखानी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम अपनी कमाई को तो देखते हैं और क्या कमाई है हमारी, एक कमाने वाला से बेहतर कौन बता सकता है। और हमें हमेशा अपनी कमाई 10% बिल्कुल बचा कर के रखना चाहिए, ऐसे जैसे कि वो हमारा नहीं, ठीक है? तो क्या होता है ना कि इससे वो फॉर फ्यूचर हमारे ही काम कल के दिन अगर किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे बच्चे को ही किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाए, तो वो हमारा बचा हुआ जो धन है, जो हमने रखी हुई है, वो तो काम आ जाता है ना उस, या फिर कभी नहीं भी काम आया बच्चों में कहीं, कि चलो भाई ठीक-ठाक चल रहा है, हम फिर भी 10% बचा कर के रख रहे हैं, जमा पूँजी है वो हमारी, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए मैं चाह ये बिल्कुल सही है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला या हर पुरुष अपनी कमाई से वो 10% बिल्कुल बचा कर के रखे, जो उसके आगे काम आए। उससे उससे उनका, उनके फैमिली का ही भला हो। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम ये जानना चाहेंगे, हम सब लोग कभी-कभी बहुत खुशी से रहते हैं, कभी-कभी गम में भी डूब जाते हैं, कभी-कभी थोड़े दिन ऐसे भी आ जाते हैं कि हम एकदम मूडी हो जाते हैं, अपने आप में ही वी विल बी लॉस्ट बिल्कुल, इन आवर बिल्कुल। ओन सेल्फ। तो जब आपको ऐसा कभी-कभी अंदर से तकलीफ होती है या दुःख होती है किसी बात को लेकर, हुँ, हम हमेशा उसी इसमें नहीं बैठ सकते, दुःख के साथ ही नहीं बैठ सकते, उससे बाहर निकलना है। तो आप अगर बिल्कुल। उस फ़ेज़ में हैं, दुखी हो गए, थोड़ा-सा हर्ट हो गए, तो आप बाहर कैसे निकलती हैं? आपको शक्ति कहाँ से मिलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, इससे मैं बाहर निकल के मैं आई वांट टू शाइन इन द वर्ल्ड? एक्चुअली मैं बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि हर किसी में एक अपना होता है, क्षमता होती है, अपना पावर होता है। तो मैं पहले, आपने सुना होगा कि जब आप अपनों पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, तो एक सहारा के लिए लोग अपनों को ही ढूँढता है पहले। और होता क्या है कि ये अपने ही सबसे पहले मुँह फेर लेते हैं ना? तो क्या होता है ना कि उस समय सबसे ज़्यादा लोगों को तनाव होता है। अरे यार! मेरा अपना था, मैंने कितना भरोसा किया, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। बट होता क्या है कि फिर उससे बाहर भी निकलना चाहिए, उसी में नहीं डूबे रहना चाहिए। और उससे बाहर निकलने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जो सच्चे और जो स्पष्टवादी इंसान होता है, उसको तनाव नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ना अभी, कि थोड़ा मन में आता है फिर जल्दी खत्म हो जाता है। तो सच्चा और स्पष्टवादी इंसान तनाव मुक्त रहते हैं, तनाव युक्त नहीं। और क्या है ना कि अ, अभी आपने कहा कि उससे कैसे निकलते हैं, तो ये सोच कर के मैं निराश नहीं होती कभी, क्योंकि ये
मानव की प्रवृत्ति है एहसान फरामोशी। एहसान फरामोशी मानव की प्रवृत्ति है, ये सोच करके मैं उससे बाहर निकल जाती हूँ, कि छोड़ यार क्या सोच, हर कोई एहसानमंद थोड़ी होता है, नहीं कुछ एहसान फरामोश भी होता है। तो ये सोच के मैं बाहर निकल जाती हूँ, मानव की प्रवृत्ति, तो इतने इसमें क्या सोचना है? और यही सोच के खुद को मैं मोटिवेट कर लेती हूँ और इस तनाव, डिप्रेशन, टेंशन जो भी कह लीजिए इससे दूर हो जाती हूँ, उससे बाहर निकल जाती जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने शेयर किया। अभी आप एक अच्छे से लेखक हैं, बहुत कुछ आपने ऑलरेडी आप शेयर कर चुके हैं। आगे क्या शेयर करने वाले हैं, किन किन विषयों पर लिखने वाले हैं, क्या ये बता सकते हैं? हूँ। बिल्कुल, आगे मेरा, मैंने बताई थी अभी आपको कि महिलाओं, अभी मैंने आपसे बात करी थी इसी विषय पे कि मैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं की जागरूकता के विषय में, उनके उत्थान और ये जो आपकी पौराणिक विचारधाराएँ हैं, महिलाएँ घर की शोभा है, महिलाएँ घर में ही अच्छी लगती है। म चूल्हा, चौका अपने पति और बच्चों में समय देते हुए, तो मैं इससे बाहर निकल आऊँ। इससे बाहर निकले महिलाएँ, मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहती जी मैम, अभी हम ये पूछना चाहेंगे जिंदगी के बारे में। बहुत सारे लोग जो है ये प्रश्न पूछा है, क्यों जिंदगी, इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी दुख, इतना सारा कष्ट, तो जिंदगी का क्या फायदा? आना, इतना दुख सहना और मर जाना, एक दिन तड़प के कभी मर जाना या कभी कभी चले जाना ऊपर। तो जिंदगी का अर्थ क्या है? तो आपने भी कभी ऐसा सोचा है जिंदगी का अर्थ के बारे में? मैं हमेशा बार बार पूछती हूँ, क्यों ये जिंदगी, क्या फायदा? थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? आपके सोच विचार बताइए। हूँ। मैं इस मामले में आपको थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहूँ। जी जी। कहते हैं लोग कि 84,000 करोड़ योनियों में मानव जीवन से सबसे उत्तम जीवन, ठीक है? और कहते हैं ना कि मानव जीवन इतना दुर्लभ है कि फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे मतलब भगवान का ये ब्यूटीफुल क्रिएचर कह सकते हैं आप कि मानव जीवन, और जिसने ये कहा कि ये ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी, अरे ज़िंदगी सबसे अच्छी चीज़, इसे जीने का तरीका आना चाहिए। वाह। इसे जीने का तरीका आना चाहिए। लोग आप देखिए ना प्लेटफ़ॉर्म पे जाते होंगे या कहीं रोड पे जाते होंगे, तो चा लोग आपको लेटे हुए भी जो मिलते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ़ को मस्ती से जी रहे होते हैं। उसे कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसे है? चंद पैसे वालों को, जो जोड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अरे यार! ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, ज़िंदगी को क्यों कोसते हो यार? कोसना है तो खुद को कोसो। ज़िंदगी तो इतनी अच्छी है, एवरीडे निकलते जा रही है इसी सोच में। जी नहीं रहे, आप सोच रहे हैं। इसलिए ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसे जितने अच्छे तरीके से आप जी, बढ़िया है, दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है, दैट्स रियली ग्रेट। अभी मैम, हम सबको इस धरती को छोड़ के एक ना एक दिन जाना है। जब अपना बिल्कुल, वक्त आएगा तो चले जाएंगे हम। तो हम जब नहीं रहेंगे, जब संपदा नहीं रहेगी इस धरती पर, तो लोग बिल्कुल, बिल्कुल। संपदा को किस तरह याद करना है, किस विषयों पर याद करना है, या किस बात को लेकर संपदा की याद करना है? विश्व। मैं चाहती हूँ कि जब लोग मैं मेरे नहीं रहने पे लोग मुझे ये कहे कि अरे यार! कितनी अच्छी कवियत्री थी और सबसे अच्छी व्यवहार थी वो। कितने अच्छे से सबसे मिल-जुल करके रहती थी। किसी से भी मुस्कुरा के बात करना, ये मेरी हॉबी है। ये मुझे अच्छा लगता है कि वो तनाव लेना, मैंने कही मुझे बिल्कुल पसंद, मैं लेती ही नहीं। और मुझे लोग एक अच्छी कवियत्री की, एक एक अच्छे इंसान के रूप में मुझे याद करें। ये कवियत्री तो कही कि बहुत सारे हैं, पर उसमें एक अच्छी इंसानियत, एक अच्छी व्यावहारिकता हो, तो फिर सोने पे सुहागा। तो मैं चाहती हूँ कवियत्री कम, मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में लोग ज़्यादा जानें। बढ़िया है मैम, बहुत बहुत खूब आपने कहा, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये जानना चाहेंगे पकवान के बारे में। अभी आप बिहारी हैं, अभी झारखंड में है फिलहाल, तो आप पकवान में किस तरह के चीज बनाते हैं, पकवान में माहिर हैं आप?
तो झारखंड में क्या फेमस है, बिहार में क्या फेमस है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, हम लोग तो साउथ इंडिया के जी हैं। जी जी। तो बताइए। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। क्रिस्टीना जी मेरे हाथ का खाना कभी खाएंगे ना तो चाट के खाएंगे। वाह। बिकॉज बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस, और मैं लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती हूँ। और अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो लिट्टी चोखा आपको बिहार में घर घर मिलेगा। और वहाँ चूंकि पहले जो है ये झारखंड और बिहार एक 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ, ये अलग स्टेट बन गया, तो वो अलग स्टेट हो गया बिहार, नहीं तो पहले एक ही थे दो। इसलिए यहाँ भी बिहार का ही चीज फेमस है, जो बिहारी खाते हैं वो ही झारखंडी भी खाते हैं। लिट्टी चोखा दोनों जगह फेमस। बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मैम, अभी आप जब नाइंसाफी को देखते हैं या नाइंसाफी के बारे में सुनते हैं, तो आपके व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या कैसे रिएक्ट करते हैं आप? मैं आपको अपनी ये मैं क्या क्या रिएक्ट करती हूँ, मैं आपको 4 पंक्तियों में निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिए। जी। ये मानना दिल में थोड़ी सी शराफत भी जरूरी है, ये मानना दिल में थोड़ी सी शराफत भी जरूरी है, अपने हक के लिए थोड़ी बगावत भी जरूरी है। अगर झुक जाओगे ज्यादा समझ लेंगे फिजूल सब, अगर झुक जाओगे ज्यादा समझ लेंगे फिजूल सब, आज के दौर में थोड़ी खिलाफत भी जरूरी है, आज के दौर में थोड़ी खिलाफत भी जरूरी है, आज के दौर में थोड़ी खिलाफत भी जरूरी। बढ़िया है, दैट्स रियली वेरी नाइस, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। क्या आप स्पोर्ट्स और गेम्स में भी भाग लेते थे स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, नहीं के बराबर। अच्छा। जी जी, अभी आप एक लेखिका है, क्या आप दूसरी किताबें भी पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो किस तरह के और किन तरह की किताबें पढ़ते हैं, किन विषयों पर पढ़ते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि जो एक अच्छा लेखक हो सकता है ना, वो दूसरों की कविता पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इससे लोग मोटिवेट होता है। और मैं मोटिवेशनल ज्यादा कविताएं पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल टाइप के, और मोटिवेशनल लिखती भी हूँ। मोटिवेशनल लिखती हूँ, मैंने कही ना कि मैं हर तरह की लिखने का कोशिश करती हूँ। लिख पाती हूँ कि नहीं ये तो आप सब बताएंगे, क्योंकि मैं लिखती लेकिन हर तरह की कविताएं, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस। भक्ति रस का कोई सुना दीजिए हम। बिल्कुल, मैं भक्ति रस का सुनाती हूँ। जी जी। So friends, we are connected with our celebrity guest. She is none other than Sampada Thakur. She's joining us all the way from Jharkhand. She's a wonderful person. She is a writer and she writes different kinds of articles and poems and lots of stuff with regard to literature. Over to you, ma'am. मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। मुरली की मधुर धुन बजा के, गोपियों के मन प्रेम जगाए। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। माँ यशोदा और नंद का लाला, रूप इनका जहां से निराला। माँ यशोदा और नंद का लाला, रूप इनका जहां से निराला। सिर मुकुट मोर पंख सजा कर, नन्हे कदमों से चल कर हैं आए। सिर मुकुट मोर पंख सजा कर, नन्हे कदमों से चल कर हैं आए।
मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। मैंने एक पंक्ति सुनाई मैम, अगर आप बोले तो मैं पूरा सुना। यस यस, पूरा सुना दीजिए। थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा जुकाम के कारण मेरी गला खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कर। जी जी। बड़े आनंद की रात आई, बज रही गोकुल में बधाई। बड़ी आनंद की रात आई, बज रही गोकुल में बधाई। मच गई खलबली सुर असुर में, मच गई खलबली सुर असुर में, टूटने वाली उन पर बलाएं। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। हर दिल का वही है दुलारा, माँ यशोदा के आंख का तारा। बड़ा नटखट मेरा कमली वाला, सबके माखन दही को चुराए। बड़ा नटखट मेरा कमली वाला, सबके माखन दही को चुराए। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। सार गीता का हमको बताया, धर्म की राह चलना सिखाया। सार गीता का हमको बताया, धर्म की राह चलना सिखाया। जीवन का सफर है तुम्हीं तक, तेरे चरणों में हम सर नवाए। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। मुरली की मधुर धुन बजा के, गोपियों के मन प्रेम जगाए। मेरा कान्हा मधुर मुरली वाला, ब्रिज की गलियों में रास रचाए। ब्रिज की गलियों में रास रचाए। धन्यवाद। बहुत खूब, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत आनंद आया हमें जब आपको सुन रहे थे हम। इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। आपकी जो वर्ड्स, जो शब्द आपने चुने हैं, जी उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने यू हैव पुट इट इन अ वेरी राइट वे। दैट्स रियली वेरी नाइस। हम अभी ये जानना चाहेंगे मैम, जब आप स्कूल में थी तो कोई ऐसा कोई अध्यापक या अध्यापिका का असर होगा आप पर, कि उनके बढ़ावा से आप यहाँ तक पहुंचे, या उनका प्रशंसा से आपको समझ में आया कि हाँ मुझे लिखने का शौक है या मैं लिख सकती हूँ। वो शाबाशी कर दिए आपको, या शाबाशी सभी के सामने करवाया। सो आई मीन लाइक, ऐसा कोई है आपका कोई टीचर या सर? जी। एक जब मैं स्कूल में थी, हाई स्कूल में, तो हमारे एक सिन्हा सर थे। तो मैं जब कुछ लिखती थी, ऐसा नहीं कि वो मुझे बताते थे या उसमें कुछ, लेकिन हाँ मोटिवेट बहुत करते थे। जब मैं कुछ लिखती थी तो आखिर किसी कोई एक देखने वाला तो होता है, सर आप देखो ना प्लीज, आप देखिए। तो वो देखते थे और वाह संपदा, तुम बहुत आगे जाओगी एक दिन, देखना। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जी जी जी। उनका नाम आपको याद है? मैं उनको अक्सर सिन्हा सर कहती थी, सिन्हा सर। अब तो वो है नहीं, जी तो मैं उन्हें सिन्हा सर कहती थी। और एक्चुअली उनका टाइटल सिन्हा है। और बस पूरा नाम मुझे पता नहीं, लेकिन सिन्हा सर कहते थे। और सिन्हा सर आप मुझे देखिए, आप मेरा ये देखिए। और वो देखते थे और फिर मुझे बहुत वाहवाही देते थे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स रियली नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मैम अभी एक लास्ट प्रश्न हम पूछेंगे। अभी ये पूछना चाहेंगे, एक सुंदर सा दिन आपके जिंदगी में कैसा रहना है? अभी हम, अब मेरे मन में मैं किसी से बात करूं, या मैं हमारे मंच पर कोई आए तो वो एक सुंदर सा दिन है। मेरे बच्चों से मैं बात करूं, वो सुंदर सा दिन है। घर में शांति हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, या ऊपर नीचे जब बात हो जाती है कभी कभी, नेगेटिव ना बात करें हम, तो वो एक सुंदर सा दिन।
आपकी जिंदगी में आपके लिए एक सुंदर सा दिन क्या है और कैसा रहना है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर दिन सुंदर देखना चाह रहे हैं या एक दिन सुंदर देखना चाह रहे वाओ। हैं। मैं मेरे फैमिली में हर दिन सुंदर देख हमारी फैमिली में मैं 4 लोग हूँ, एक मेरी माँ, 5 हैं। तो अपने वो अपने अंदर की चीज़ है कि एक दिन सुंदर उनके लिए होता है, जो कि 7 डेज़ में 6 डेज़ सुंदर नहीं रहता। और सबसे बेस्ट दिन मेरा वो रहता है, जब हम पूरी फैमिली पूरे खुल के एन्जॉय करते हैं। वो दिन मेरे लिए सबसे बेहतर दिन होता है, घर के लिए। और आप अगर देख लें तो मैं अच्छी-अच्छी रचनाओं को पढ़ती रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया से जुड़ी, फेसबुक पे जुड़ी हूँ, इंस्टा, ट्विटर हर हर जगह हूँ मैं। पर मैं फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मैं वहाँ अक्सर लोगों की रचनाओं को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो तरह-तरह की रचनाओं से भी माइंड रिफ्रेश रहता है, देखना, पढ़ना। जी बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद मैम। अभी अंत में एक अच्छी सी संदेश दे दीजिए हम सभी के लिए। व्हाट इज द संदेशा फ्रॉम, क्या संदेशा है संपदा ठाकुर मैम से? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि लोग जो पुरुष महिलाओं को अबला समझते हैं, वो अबला और लाचार अब बेचारी नहीं है। हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। हर क्षेत्र में उनसे ज़्यादा तरक्की पुरुषों से ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। और जिसके फैमिली की पिछड़ी मानसिकता है, वो भी अपनी मानसिकता थोड़ी बेटियों को लेके, लड़कियों को लेकर के बदले, क्योंकि बेटियाँ कभी बेटों से कम नहीं। और ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स को मैं कह रही हूँ, मैं उन बेटियों को भी कह रही हूँ कि पेरेंट्स के स्वतंत्रता का गलत नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, है ना? क्योंकि अभी उनको मोटिवेट होना है। आए दिन ये कांड देख कर के कभी बलात्कार, कभी हत्या, कभी टुकड़ों में बँट कर के आना, तो कहीं न कहीं इसके लिए थोड़ी बहुत तो बेटियाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ पुरुष ही बदमाश होते हैं। कभी-कभी 99 में 100 में 1% तो होती है ना। अब क्या मजबूरी होती है लड़कियों की पता नहीं। पर मैं यही कहती कभी-कभी कोई बेटियाँ भी पेरेंट्स के फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर। मैं ये कहूँगी कि ऐसा मत करो। तुम्हें फ्रीडम दिया गया है, तुम उसका पूरा फ़ायदा पढ़ाई-लिखाई में उठाओ। तुम्हें फ्रीडम दिया गया है, कुछ बन के दिखाओ। और मैं बताइए कि पिछड़ी मानसिकता वाले पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, उसे स्वतंत्रता दीजिए। एक बार उसे स्वतंत्रता देके देखिए देखिए, वो कहते हैं ना कि माँ-बाप की आन-बान शान है बेटी, तो हकीकत में वो शान बन कर के दिखाती। जी बहुत बहुत अच्छा है आपका मैसेज, बहुत अच्छी तरह से ये तरीके से आपने समझाया कि स्वतंत्रता को हम इस्तेमाल कैसे करना है। दैट्स रियली जी, नाइस। बिल्कुल, जब माँ-बाप बिल्कुल। स्वतंत्रता देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, सही जगह पर उसका इस्तेमाल इस्तेमाल करना है, करना या है। पढ़ाई में या खुद को आगे ले जाने में उसका नेगेटिव ये नहीं करना है। नहीं, नहीं लेना है नेगेटिव, यस। ताकि पेरेंट्स को भी आपके ऊपर यकीन हो कि मैंने बच्चों को भेजा है तो वो बिल्कुल सही जगह पे। जी, जी। क्योंकि बेटियों को लेकर के अक्सर पापा को, मम्मी को घर में टेंशन बना रहता है। आए दिन के ये सिचुएशन को देखते हुए, तो जी, ये नहीं करना है। जी, जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। आगे भी आना है और शेयर करनी है। आपके सोच विचार बहुत नेक है और आप सभी के लिए एक अच्छा सा संदेशा भी दे चुके हैं। दैट इज रियली वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे आपके काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी जाकर और भी आप ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स मिलना है आपको। बहुत ऑलरेडी मिल चुके हैं, इतने सारे हम पढ़े अभी। तो आपको ये बात अभी एक पूछना है अंत में, आपको जब ये सभी अवार्ड्स में आपको कौन सा अच्छा वाला लगा? अगर मैं किसी एक को अच्छा कहूँगी तो दूसरे की क्रिटिसाइज़ हो जाएगी। जी जी। तो मेरे लिए सारे अवार्ड मायने रखते हैं। ठीक। मेरे क्योंकि किसी ने भी मुझे अवार्ड भेजा है, तो वो मुझे उस लायक समझ कर के और मुझे सम्मान दिया है। तो मैं किसी एक को ऊपर करके
किसी दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा अवार्ड हमारे लिए सबसे सम्मान की बात है। और मैं उसे जब देखती हूँ ना, तो मैं एनर्जेटिक होती हूँ, ठीक है? और वो एनर्जी सम्मान से मिलती है, लोगों की वाहवाही से मिलती है, लोगों की तालियों से मिलती है। तो मैं वो किसी एक को अच्छा नहीं, मेरे लिए सारे सम्मान मायने रखते बहुत अच्छा मैम, दैट्स रियली नाइस। आगे भी आपको बहुत सारा सम्मान आना है और आएगा भी। आपके जो काम जी। को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, हम आशा करते हैं बहुत अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स आपके लिए आगे भी आए। दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द फैब टॉक्स। बहुत-बहुत आभार आप मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए क्रिस्टीना जी। और सबसे अच्छा मुझे आपका लगा, आप बिल्कुल फ्रेंडली रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले मैं सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल फ्रेंडली हैं आप, बहुत अच्छा लगा। थैंक धन्यवाद। यू। आपका दिल भी बहुत अच्छा है, आपका मन सोच विचार सब बहुत अच्छा है। आप सभी का भला चाहते हैं, हम ये समझ सकते हैं जब आप बात करते हैं या शेयर करते हैं, सभी का भला चाहते हैं और एक अच्छा संदेशा भी आपने दिया। दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। Thank you, dear. So, dear friends, with this, we come to an end now to the International Fab Talks for today. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Do share this video with the right kind of people. You never know if somebody may be interested in what was being shared today. And if you would love to be a part of our journey, if you would love to come and share your journey on the International Fab Talks, you can join us and you can share your journey with us on the International Fab Talks. With this, now we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Stay connected and stay blessed. And of course, don't forget to pursue your passion and stay connected to your family and love the universe as well. Stay blessed and stay connected.